Well, hello everyone. Sat Shri Akal, Namaste, Adab. My name is Parampreet Kaur and today I am here to discuss my Canadian PR success story. Well, I hope this video will be helpful to those who want to apply their permanent residency for Canada directly from India with 4 or 5 years of experience and with master's degree. Well, everybody has a different route to their Canadian permanent residence. Some want to apply their permanent residence through study route and some want to apply their PR through provincial nomination program. In my case, I had applied my permanent residency through federal skilled worker program. Well, actually I had already invested so much of my time in India. I am double graduate, then I had my Indian experience, 4 to 5 year of experience from India. This is a program in which a person has a skill and he has an experience of 4 to 5 years in any particular skill. Then he wants to apply his permanent residency in Canada. Then he can get the ITA if his score matches the score of the draw. So basically कनाडा परमानेंट रेजिडेंस में एक स्कोर सिस्टम है जिसमें कुछ फैक्टर्स अगर आप पूरे कर लेते हैं, आपके स्कोर अगर उस स्कोर के साथ मैच करते हैं, देन डेफिनेटली यू गेट द इनविटेशन टू अप्लाई. दैट मींस आपने जो भी अपनी फाइल में सारी चीजें मेंशन करी कि मैं ये चीजें मेरे पास हैं, वो सारी चीजें अगर आपकी मैच कर जाती हैं उस स्कोर के साथ, देन आपको इन्विटेशन आता है एंड देन आपको वो जस्टिफाई करना पड़ता है, सारे डॉक्यूमेंट सारे प्रूफ देने पड़ते हैं जो भी आपने काम करा. सो आई होप ये वीडियो उन सबके लिए हेल्पफुल होगी जो इस वक्त स्कोर काफी हाई होने के कारण अपनी मोटिवेशन डाउन करके बैठे हैं. वेल, माय पीआर सक्सेस स्टोरी इज अ स्ट्रगल स्टोरी बिकॉज आई हैड अप्लाइड अंडर फेडरल स्किल प्रोग्राम इन 2019 एज वेल एंड अपनी सारी फाइल सबमिट करने के बाद आई गॉट द आईटीए इन 2019 बट देयर वर सर्टेन मिस्टेक्स दैट आई कमिटेड एट दैट टाइम एंड इसीलिए माय फाइल गॉट रिजेक्टेड एंड आफ्टर दैट कोरोना केम एंड द सीआरएस स्कोर वेंट अप सो हाई कि मैं उसे मैच ही नहीं कर पा रही थी. काफी साल लगे बट आई डिडंट लूज होप. आई ट्राइड again and again. And ultimately I got the success. So I think that one must not leave their goal and definitely try again and again. Ultimately he can attain the success. So you can apply your permanent residency without the help of any agent, and I will help you out in understanding the steps that are involved in applying the permanent residence. Here I'm going to help you out in understanding how the whole express entry system and its process works. Let's not waste any more time and quickly delve into the video. So firstly, let's understand whether you are eligible to apply under CEC or FSW category. So what is CEC category? CEC category is for those who have gone to Canada on their study visa and now they want to apply their PR. So they come under Canadian experience class. And FSW category is for those who have their education and their skill outside Canada, that is from India or any other part of the world, and they want to apply their permanent residency outside of Canada. So first of all, आपको eligibility चेक करने के लिए 100 पॉइंट्स में से 67 पॉइंट्स अगर आपके बन जाते हैं, ये 67 पॉइंट्स बनते हैं कुछ फैक्टर्स को मिला के, जैसे कि एज, एजुकेशन, लैंग्वेज एबिलिटी, वर्क एक्सपीरियंस, इफ यू हैव द जॉब ऑफर फ्रॉम कनाडा और नॉट. सो ये 5-6 फैक्टर्स को कंट्रीब्यूट करके अगर आपके इन सब फैक्टर्स में से 67 पॉइंट्स बन जाते हैं तो डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट योर परमानेंट रेजिडेंसी जर्नी. सो यहाँ पे आपके एज के 12 पॉइंट्स, दैट मीन्स मैक्सिमम 18 to 35 एज के इंडिविजुअल्स को 12 पॉइंट्स मैक्सिमम मिलते हैं. लैंग्वेज एबिलिटी के मैक्सिमम 24 पॉइंट्स हैं. एजुकेशन के 25 पॉइंट्स, दैट मींस इफ यू हैव द ग्रेजुएशन एंड द मास्टर्स डिग्री. देन आपके वर्क एक्सपीरियंस के मैक्सिमम 15 पॉइंट्स हैं. अगर 6 और मोर ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है तो यू गेट 15 पॉइंट्स फॉर दैट. देन आपकी अरेंज एम्प्लॉयमेंट, अगर आपकी जॉब ऑफर आपके पास है कनाडा में, उसकी अलग से आपको कुछ पॉइंट्स मिल. सो अगर ये सारे पॉइंट्स को मिला के आपके 67 पॉइंट्स बन जाते हैं, देन डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट योर पीआर जर्नी. सो यू हैव टू क्रिएट योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल. आपको अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं एंड देन आपको कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वर्कआउट करना है, जैसे कि आपको अपनी लैंग्वेज एबिलिटी, दैट मींस आईएलटीएस का एग्जाम देना पड़ेगा. देन आपको अपना ईसीए करवाना पड़ेगा, दैट मींस एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट. देन आपको अपनी जॉब जो भी आपने की है उसमें नॉक कोड्स के अकॉर्डिंग आपको देखना आपकी जॉब किस नॉक के अंडर फॉल कर रही है. एंड देयर आर सर्टेन अदर स्टेप्स जो आपको डिटेल में फॉलो करने पड़ेंगे. हम उन्हीं के बारे में और इन्हीं सारे प्रोसेसेस के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे. बट बिफोर दैट हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा दैट हाउ द एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम वर्क्स. सो परमानेंट रेजिडेंसी आपको एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं. एक्सप्रेस एंट्री क्या है? इट इज कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम जिसमें आपकी एज, लैंग्वेज एग्जाम, ईसीए, आपकी एजुकेशन कितने ग्रेजुएट किया है, पोस्ट ग्रेजुएट किया है या मास्टर्स किया है या आपके पास डबल ग्रेजुएशन है, किस यूनिवर्सिटी से आपने स्टडी किया है, जो एक्सपीरियंस है वो कितने साल का है, कौन से नॉक में आपका एक्सपीरियंस फॉल कर रहा है, इन सब के बेसिस के ऊपर आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम स्कोर आपका बनता है, जिसको
जिसको हम कहते हैं CRS स्कोर। अब ये टोटल 1200 पॉइंट्स में से आपके स्कोर 400 to 500 की कैटेगरी में फॉल करने चाहिए। राइट नाउ जो लेटेस्ट ड्रॉ आया था दैट ड्रॉ केम ऑन 31st of May एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो स्कोर 522 पे गया था। दैट्स द मोस्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ स्कोर्स जो मैंने आज तक देखे हैं। सो अब इन 1200 पॉइंट्स में से ये सारे क्राइटेरियाज जो आपकी एज, लैंग्वेज एबिलिटी, एजुकेशन, देन आपकी जॉब एक्सपीरियंस, इन सबको मिला के जो भी आपका CRS स्कोर एक बनता है, एवरी 2 वीक एक स्कोर आता है और वो स्कोर अगर आपके स्कोर के साथ मैच कर जाए तो डेफिनेटली यू कैन अटेन योर परमानेंट रेजिडेंसी। नाउ अगर आपने अपनी फाइल एक्सप्रेस एंट्री पूल में डाल भी दिया, दैट डजंट इंश्योर यू कि आप परमानेंट रेजिडेंस हो ही जाएंगे, बिकॉज आपका स्कोर, आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी स्किल, जो भी आपकी एज है, वो सारा कुछ उन पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहिए जो कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री में हाईएस्ट स्कोर को मैच करता है। उसी को ही परमानेंट रेजिडेंसी के लिए इन्विटेशन टू अप्लाई आता है। So now let's understand what are those factors on which your CRS score is based. First of all, language ability. Language ability means आपने IELTS में कितना स्कोर किया है। फेडरल स्किल्ड वर्कर या कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास दोनों के लिए 8777 तो बहुत ही जरूरी है लेना, बिकॉज दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर CEC एंड फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। जितना स्कोर आप ऊपर लेके जाते रहेंगे उतने ही आपकी CRS स्कोर भी बढ़ते रहेंगे, जितना आपका IELTS स्कोर बढ़ेगा। लेट्स से फॉर लिसनिंग 8.5 is the maximum score, and for reading 8 is the maximum score, for writing it's 7.5 and for speaking it's 8.5. so जितने भी कैंडिडेट्स हैं अगर वो ये वाले थ्रेशोल्ड को मैच कर जाते हैं तो उनका स्कोर और भी ज्यादा मैक्सिमम पहुंचता है, दैट इज मे बी 24 पॉइंट्स। सो इन माय केस आई गॉट C2 लेवल इन IELTS दैट इज 8.5 और अबव, सो मुझे सारे IELTS के मैक्सिमम पॉइंट्स मिल गए। सो बेसिकली दिस इज IRCC's वेबसाइट जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कौन सी लैंग्वेज एबिलिटी और आपका कौन सा लैंग्वेज एग्जाम यहाँ पे चलेगा। लेट्स से अगर आपने फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम्स या कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास दोनों में से अगर आपने IELTS करा है तो IELTS में आपको मैक्सिमम स्कोर जो या CLB मैक्सिमम जो पॉइंट्स आपके 24 पॉइंट्स मिलते हैं, जिसमें आपके अगर CLB लेवल 7 है तो आपको 666 चाहिए। अगर आपका CLB लेवल 9 है तो 8777 आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपका CLB 10 या अबव है तो आपको ये स्कोर्स के अकॉर्डिंगली आपका जैसे C2 लेवल जो प्रोफिशिएंसी है वो आपको अब ये सारे स्कोर्स में स्पीकिंग में आपके 7.5 से 9 स्कोर तक मैक्सिमम मिलेगा, लिसनिंग में 8.5 से 9, रीडिंग में 8.8 से 9 एंड राइटिंग में 7.5 से 9 में जितना भी आप स्कोर करेंगे आपको सेम ही स्कोरिंग मिलने वाली है CRS पॉइंट्स में, राइट। तो इसमें मैक्सिमम आपका जो स्कोर रहता है वो C2 लेवल रहता है। जैसे कि IELTS में मैक्सिमम स्कोर मिलते हैं आपको C2 लेवल पे, दैट मींस प्रोफिशिएंट यूजर, दैट इज A1 A2 B1 B2, 6.5 is the B2 and then C1 level is 7 or 7.5 or 8 and then C2 level is 8.5 or 9 score. So I got C2 level in 9. देन नेक्स्ट स्टेप इज आपको अपनी ECA करवानी पड़ेगी। नाउ व्हाट इज ECA? ECA इज एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। लेट्स से आपने इंडिया से अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर्स या डबल ग्रेजुएशन करी है, तो जो यूनिवर्सिटी से आपने अपनी स्टडी करी है यू हैव टू हैव योर एजुकेशनल क्रेडेंशियल डन। नाउ एजुकेशनल क्रेडेंशियल मींस आपको अपनी इंडियन एजुकेशन को कैनेडियन एजुकेशन के साथ इक्विवेलेंसी शो करनी है। उसके लिए देयर आर वेरियस कंपनीज जो कैनेडियन एम्बेसी ने जिनको रूट्स दिए हैं कि वो आपकी एजुकेशन को इवैल्यूएट करवा के कैनेडियन इक्विवेलेंसी के अकॉर्डिंग बताए। तो यहाँ पे कुछ कंपनीज हैं जैसे कि WES, IQAS एंड ICAS। all these companies charge the same, but through my personal experience I would rather recommend कि आप WES ही करवाएं, WES, because it works a little bit faster as compared to other companies. So once आपकी IQAS या फिर WES हो जाती है उसके बाद आप डेफिनेटली अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो WES का प्रोसेस कैसे होता है? लेट्स से आपने WES पे अपना ऑनलाइन जाके अकाउंट क्रिएट किया, यू फिल्ड ऑल योर डिटेल्स एंड उसके बाद आपको वो कुछ डिटेल्स देंगे और आपको अपनी यूनिवर्सिटीज में जाना है। जो भी जहां पे भी आपने आफ्टर 12th अपनी एजुकेशन करी है उन यूनिवर्सिटीज में जाके आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करनी पड़ती है। सभी यूनिवर्सिटीज का अपना प्रोसेस है। इन माई केस पंजाब यूनिवर्सिटी ने मुझसे पर डॉक्यूमेंट 500 रुपीज चार्ज करे थे। आपकी यूनिवर्सिटी कभी भी आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देती है। आपको WES के लिए कैनेडियन WES का एड्रेस
एड्रेस भेजना पड़ेगा एंड देन वो वहाँ पे आपको आपके डिग्रीज ट्रांसक्रिप्ट्स बनाकर सील्ड डॉक्यूमेंट में डायरेक्टली वेस्ट के ऑफिशियल एड्रेस पे कनाडा में कुरियर करवाना होता है, जिसमें कुरियर चार्जेस भी आपको देने हैं। इन माय केस मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एजुकेशन की थी एंड महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से अपनी लॉ कंप्लीट की थी, तो मैंने दोनों के प्रोसेस किए थे। अब यहाँ पे आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारी ऐसे की यूनिवर्सिटीज हैं जो डायरेक्टली ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू ही अपनी वेस्ट आप करवा सकते हैं। उन्होंने ऐसी फैसिलिटीज अवेल करवाई है। तो अब पंजाब यूनिवर्सिटीज भी इवन अब ऑफलाइन ट्रांसक्रिप्ट्स नहीं अप्लाई करते, वो डायरेक्टली आपको ऑनलाइन पोर्टल्स पे फैसिलिटीज दे रहे हैं। तो यू कैन अप्लाई योर वेस्ट, और इफ यू वांट टू हैव योर एनसीए एग्जाम डन, देन हर तरीके की असेसमेंट्स आपको ऑनलाइन अवेलेबिलिटी में मिल जाती है। यू नीड टू चेक आपकी यूनिवर्सिटी ऐसा करती है कि नहीं।